Good morning, student. This is our English lecture, and today I will explain you the story. That is the story of Sindbad the Seller. Okay, but first we read the story again, and then I will explain you. Then start. The story of Sindbad the Seller. The story of Sindbad and his seven fantastic voyages appeared in the huge collection of stories. The Book of 1001 Nights or the Arabian Nights. The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. He was honest, generous, and brave. He had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in dangerous situations. He overcame great dangers and returned home safely from each of his voyage. Here's the story of his first voyage. The first voyage. Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. From first time to time, from time to time, they stopped at various ports. There they sold their merchandise and brought a new thing to trade. One day, when their ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance. They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the land. They sailed close to the island. The captain of the ship allowed them to go there for a picnic. Everyone was excited. One of Iceland, they scroll on the Iceland, they scroll around, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires, cook meal. Soon the breeze sprang up. The fires began to blaze. Suddenly, the land began to shake and move. With a shock, the picnic party realized that the Iceland was not an island at all. They were on the back of a huge sea monster and it had started moving. People began to scream. They left their pots and pans, their clothes both washed and unwashed, and rushed back to the ship. The captain ordered his men to sail immediately in order to move away from the monster. The sea monster plunged deep into a sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into a sea with so-called Iceland. Sindbad alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. He saw it sailing far away. He was now at the mercy of the waves. Being tossed here and there, he clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. He spent the night alone at sea. When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island, a real big island. He could see hills and woods and trees at a distance. Though he was extremely tired, he swam to the shore with all the strength that he could muster. Exhausted and hungry, he lay on the sand for some time. Then again he made an effort and began to walk Iceland toward the shady fruit trees that he could see at a distance. Luckily, this was a time when the king of the Iceland sent his horses to the seashore
with the grooms. The grooms saw Sindbad and gave him food and drink. Then they took him to the king. The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. He asked Sindbad to stay with him and work as an officer of the king at a port. Sindbad stayed there for a few days, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and port that he had visited. At the port, Sindbad often made inquiry about any ship coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that port. Then one day a ship arrived at Iceland with a lot of merchandise. Sindbad was qui when the cargo from the ship was being unloaded. He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. Then he went to see the captain of the ship. At first, the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drowning in the sea. But when Sindbad spoke to him face to face, he recognized him. He was overjoyed to see Sindbad alive. He gave him back to his merchandise. From the gold that he thus got back, Sindbad presented the most valuable item to the king of the Iceland, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." The king was pleased. He too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the Iceland with the merchandise. If you want to know what happened to Sindbad afterward, you have to read the rest of the story of the fantastic voyage. Okay, I read the lesson. Now I explain you the story. अभी मैं आपको स्टोरी सिंदबद की जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है. We read one or 1-2 sentences and then I explain you. मैं आपको एक दो सेंटेंस पहले रीड करके बताऊंगी और वो सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके. द स्टोरी नेम इज़ द स्टोरी ऑफ सिंदबद एंड सेलर. ये जो स्टोरी है वो सिंदबद नाम का एक सेलर था उससे रिलेटेड है. ओके. द स्टोरी ऑफ सिंदबद एंड हिज 7 फंटास्टिक वॉयज अपीयर्स इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरी. ये जो सिंदबद है इसकी जो जल यात्रा है उसके जल यात्रा की बहुत सारी स्टोरीज़ है, कथाएं हैं, और ये जो कथाएं हैं उनका ह्यूज कलेक्शन है, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है उनका, ठीक है. और वो कलेक्शन कौन से बुक्स में दिया है? द बुक ऑफ 1001 नाइट और द अरेबियन नाइट्स. ये जो स्टोरीज़ का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है. सिंदबद की जल यात्रा कैसी थी, क्या थी, उसका कलेक्शन ये 2 बुक्स में दिया है. द स्टोरी टेल अस दैट सिंदबद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव इन बगदाद. ये अगर स्टोरी हम पढ़ेंगे तो उनमें हमें पता चलेगा कि ये सिंदबद नाम का जो ये सेलर था वो बगदाद में रहता था. ही वॉज हॉनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव. ही वॉज हॉनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव. ये जो सिंदबद नाम का जो सेलर था वो ब्रेव था, जेनरस दानशूर था, हॉनेस्ट था. ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ द वॉयज. उसके बहुत सारे एडवेंचरस है, ऐसे आश्चर्यकारक ऐसे कुछ उसके जो है वो जल यात्रा के उसके सफ़र की कुछ कहानियाँ हैं, वो बहुत एडवेंचरस है. ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन. वो कोई भी डेंजरस सिचुएशन आए अपने होप्स उसने कभी भी
he lost his hope. Okay, he overcome great danger and returned home safely from each of the voyage. वो हमेशा सफ़र के बाद, अपने समुद्री सफ़र के बाद हमेशा सक्सेस होके ही अपने घर में सेफली पहुंचा है, अच्छी तरह से वो अपने घर पहुंच पाया है। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज। ये सिंदबद की जो पहली समुद्री सफ़र थी उसकी स्टोरी यहाँ पर दी गई है हमें, ठीक है, वो स्टोरी हम देखेंगे। द फर्स्ट वॉयज, पहली समुद्री सफ़र किसकी? सिंदबद की, ठीक है। सिंदबद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप। सिंदबद जो था वो एक सेलर था, एक कंपनी थी, मर्चेंट कंपनी शिप की, वहाँ पर वो एक सेलर था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट वेरियस पोर्ट। वो शिप पे काम करता था, मर्चेंट का, और ये जो शिप था वो टाइम टू टाइम एक नहीं तो दूसरे पोर्ट पे रुकता था, ठीक है, पोर्ट पे, किनारे पे रुकता था। देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंटाइज एंड ब्रॉट अ न्यू थिंग। वहाँ पर ये जो सेलर्स थे वो अपने जो चीज़ें थे, गुड्स, थिंग्स, वो बेचते थे और वहाँ से कुछ भी नई चीज़ें जो लगेंगी, न्यू थिंग्स, न्यू गुड्स, वो अपने साथ ले लेते थे। वन डे व्हेन देयर शिप वॉज सेलिंग स्मूथली अक्रॉस अ सी दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइसलैंड एट अ डिस्टेंस। ऐसी उनकी शिप समुद्री सफ़र कर रही थी तो उनको एक दिन क्या दिखा? एक आइसलैंड दिखा, एक स्मॉल आइसलैंड उनके नज़र में आया। They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the Iceland. बहुत दिन सफ़र करने के बाद उनको वो आइसलैंड दिखा था। सफ़र में बहुत दिन उनको कुछ भी ऐसी ज़मीन जो थी, लैंड जो थी, वो नहीं दिखी थी, तो इतने दिन बाद उनको आइसलैंड दिखा, इसलिए वो सब बहुत ही हैप्पी हो गए, खुशी हो गई वो सब लोगों को। दे सेल्ड क्लोज टू द आइसलैंड। वो आइसलैंड के नज़दीक आए। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउ देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। शिप का जो कैप्टन था उसने भी वो सेलर्स को अलाउ किया कि जाओ, आप आइसलैंड पे जाओ और एक ऐसे पिकनिक की तरह एंजॉय करके आ जाओ। एवरीवन वॉज एक्साइटेड। सबको बहुत ही खुशी हुई, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। ऑन द आइसलैंड दे स्ट्रोल अराउंड, सैंग एंड डांस। आइसलैंड में उतरने के बाद, आइसलैंड में जाने के बाद बहुत लोग गाना गा रहे थे, बहुत लोग डांस कर रहे थे। सम पीपल बिगैन टू वॉश क्लोथ्स। कुछ लोगों ने अपने कपड़े लिए थे साथ में वॉश करने के लिए। सम lit फायर्स टू कुक मील। किसी ने अपना फ़िश पकड़े, ठीक है, उनको खाने के लिए वहाँ पर फायर जो था वो फायर लगाया ऐसे। सून अ ब्रीथ sprang up, द फायर बिगेन टू ब्लास्ट। और क्या हो गया? वो जो फायर लगाया था उसका ब्लास्ट हो गया। सडनली द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव। और वो ब्लास्ट होने के बाद वो जो लैंड थी वो सडनली ऐसे मूव करने लगी, हिलने लगी। With a shock, the picnic party realized that the Iceland was not an Iceland at all. वो लैंड जब ऐसे शेक होने लगी, हिलने लगी, तो फिर उनको समझ में आया कि अरे हाँ, वो जो पार्टी थी, पिकनिक पार्टी, उनको समझ में आया कि अरे ये तो आइसलैंड नहीं है, ये तो कुछ अलग है। दे वेर ऑन अ बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर। और उनको क्या समझ में आया कि वो कहाँ पर थे? तो किसके पीठ पे थे? तो सी मॉन्स्टर, समुद्री राक्षस के पीठ पे वो जो थे वो लोग पार्टी मना रहे थे। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग। और वो जो समुद्री राक्षस है वो पानी में मूव करने लगा है।
Moving began to scream. They were back of a huge sea monster and it had started moving. और उनको पता चला कि अरे हम तो आइसलैंड पे नहीं है, हम किसी समुद्री राक्षस के पीठ पे खड़े हैं और अभी वो मूव कर रहा है. द पीपल बिगैन टू स्क्रीम्ड. वो सब लोग घबरा गए. ठीक है. They left their pots and pans, their clothes both washed and unwashed, and rushed back to the ship. उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको समझ में आया कि हम लोग किसी समुद्री राक्षस पे के पीठ पे है, वो लोग घबरा गए और वो डर से अपना सभी सामान उधर ही छोड़ के शिप में जाने के लिए दौड़ने लगे. ठीक है. द कैप्टन ऑर्डर हिज मैन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. वो शिप का जो कैप्टन था उसने उसके सेलर को, जो शिप चलाने वाला सेल था, उसको ऑर्डर दी कि जब भी मैं बोलूँगा सेट करके रखो, सब जो चीज़ है वो अच्छी तरह से सेट करके रखो. जब भी मैं ऑर्डर दूंगा कि हमें यहाँ से निकलना है तो तुरंत हमारी जो ये शिप है वो दूर जानी चाहिए ये मॉन्स्टर से. ठीक है. नेक्स्ट पेज. द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इनटू अ सी. उसने क्या किया, वो जो सी मॉन्स्टर था, समुद्री राक्षस था, उसने क्या किया, वो डीप सी में चला गया. मैनी ऑफ पीपल मैनेज टू क्लाइंब अबोर्ड टू द शिप. बहुत सारे लोगों ने क्या किया, शिप में चढ़ने के लिए वो दौड़ रहे थे, वो कूद पड़े. बट मैनी सैक इन टू द सी विथ सो कॉल्ड लैंड. लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पर ही रह गए, सी में ही. सिंदबद अलॉन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी. सिंदबद जो था वो अकेला ही समुंदर में नहीं रहा. बट ही कुड नॉट रीच द शिप. लेकिन वो शिप तक भी पहुंच नहीं पाया. ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे. वो देख रहा था कि अपनी जो शिप है वो दूर 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 जा रही है. वो देखो समुंदर में ही है, वो नहीं चढ़ पाया है शिप में, पिक्चर में दिखाया है ना. और वो क्या देख रहा है कि उसकी जो शिप है वो उससे दूर दूर जा रही है. He was now at all he was now at the mercy of the wave. लेकिन वो जो समुंदर की लहरें हैं उनको वो सिंदबद की दया आ गई. Being tossed here and there, he clung into a piece of wood and somehow managed to keep afloat. यहाँ वहाँ देखने के बाद उसको समुंदर में क्या दिखा, तो एक टॉस्ड दिखा. यहाँ वहाँ देखने के बाद उसको क्या दिखा, पीस ऑफ वुड दिखा समुंदर में. किसको, सिंदबद को. और वो उस पर चढ़ गया, उसको पकड़ के उस पर चढ़ गया और मैनेज टू कीप अफ्लोट. ही स्पेंड द नाइट अलॉन एट सी. उसने वो नाइट में भी वो वुड के सहारे समुंदर में ही रहा. When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island. लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, सिंदबद को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसको नेक्स्ट डे सूरज उगने के बाद सामने कुछ आइसलैंड की जैसे दिख रहा था. वो समुंदर में वुड के पीस ऑफ वुड के हेल्प से तैरते तैरते एक आइसलैंड के नज़दीक आ गया था. द रियल बिग आइसलैंड. और सच में वो एक बहुत ही बड़ा आइसलैंड था. ही कुड सी हिल्स, वुड्स एंड ट्री एट अ डिस्टेंस. उसको दूर दूर से हिल्स दिख रहे थे, माउंटेन्स दिख रहे थे, पेड़ दिख रहे थे. थ्रू ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड. लेकिन वो बहुत ही थक गया था. ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर्ड. वो बहुत ही थक गया था, लेकिन जैसे ही उसको सामने आइसलैंड, रियल आइसलैंड दिखाई दिया,
वो ज़ोर ज़ोर से जितनी भी स्ट्रेंथ, जितनी भी शक्ति उसके पास उसने रख दी थी, वो सब शक्ति, वो सब ताकत इकट्ठा करते करके वो जल्दी जल्दी आइसलैंड तक पहुंच गया। एग्जॉस्ट एंड हंग्री, बट वो कैसे हो गया था, वो बहुत ही थक गया था और उसको बहुत भूख लगी थी। ही ले ऑन अ सैंड फॉर अ सम टाइम, लेकिन वो क्या हो गया था, थकने के वजह से वो सैंड पे थोड़ी देर के लिए सो गया। ठीक है। Then again he made an effort to begin to walk Iceland toward the shady fruit tree that he could see at a distance. थोड़ी देर के बाद वो उड़ गया और उठने के बाद वो आइसलैंड में चलने लगा। क्यों चलने लगा, तो उसको बहुत भूख लगी थी और इसलिए उसको जो दूर दूर से पेड़ दिख रहे थे वो पेड़ ढूंढने के लिए वो आइसलैंड के अंदर चलने लगा। Luckily, this was the time when the king of the Iceland sent his horses to seashore with the grooms. Luckily क्या हो गया, तो वो आइसलैंड का जो किंग था, जो राजा था, उसने अपने हॉर्सेस ग्रूम्स के साथ, ग्रूम्स का मीनिंग क्या है, दोज हु कैरिंग द हॉर्स, जो हॉर्स की केयर लेते हैं उनको ग्रूम्स कहते हैं। उनको ग्रूम्स के साथ उसने सी शोर के यहाँ भेज दिया था। द ग्रूम्स सॉ सिंदबद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। वो जो ग्रूम्स थे उसने सिंदबद को देखा कि ये जो आदमी है वो बहुत थका हुआ दिख रहा है, भूखा दिख रहा है, इसलिए वो ग्रूम्स ने क्या किया, वो ग्रूम्स जो थे उन्होंने अपने पास का जो खाना था, पानी था, वो थोड़ा सिंदबद को दे दिया। देन दे टूक हिम टू द किंग, और वो अपने राजा के पास वो सिंदबद को लेके गए। द किंग, नेक्स्ट पेज, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैपेंड। वो जो राजा था वो सिंदबद से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि सिंदबद ने जो हुआ वो उनको कहा। ठीक है, जो कुछ हुआ वो उनको वैसे के वैसे सिंदबद ने बताया, और ये सब स्टोरी सुन के द किंग ऑफ दैट आइसलैंड वॉज इम्प्रेस्ड। ठीक है, वो जो किंग था वो इम्प्रेस्ड हो गया। ही आस्क्ड सिंदबद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट अ पोर्ट। वो जो राजा था, वो जो किंग था, उसने सिंदबद को क्या कहा कि आप यहाँ पर ही रहो और यहाँ पर ही काम करो। क्या काम करें, क्या काम दिया था राजा ने, तो राजा ने सिंदबद को ऑफिसर बनाया किंग के पोर्ट का, आइसलैंड के पोर्ट का। सिंदबद स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइसलैंड। सिंदबद थोड़े दिन वहीं पर रह गया और वहाँ के राजा से, वहाँ के लोगों से सिंदबद ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। एंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट द अदर सिटीज़ एंड पोर्ट दैट ही हैड विजिटेड। और उनको क्या कहा कि मैं और भी कुछ पोर्ट और भी कुछ सिटीज़ देखना चाहता हूँ, उनको विज़िट करना चाहता हूँ। At the port, Sindbad often made inquiries about any ship coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that spot. उसने बहुत सारे पोर्ट जो है वहाँ पर इंक्वायरी की कि यहाँ पर कोई बगदाद जाने आने के लिए कोई शिप आई थी क्या, लेकिन ऐसी कोई भी बगदाद आने जाने वाली शिप वहाँ पर नहीं आई थी। Then one day a ship arrived at Iceland with lot of merchandise. एक दिन क्या हुआ, लेकिन एक शिप आई, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। Sindbad was at Query when the cargo from the ship was being unloaded. और सिंदबद क्या कर रहा था, वो आइसलैंड में काम कर रहा था जहाँ पर वो शिप आई। कौन सा काम कर रहा था, तो जो अनलोडेड शिप है उसको लोड करने का। ठीक है, सिंदबद वॉज एट द क्वेरी व्हेन
द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बींग अनलोडेड। और जो सिंदबद था वो वहाँ के आइसलैंड पे क्या काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, तो लोडिंग करने की, अनलोड करने की शिप, ये काम सिंदबद कर रहा था। और उसी टाइम वो वही शिप में काम कर रहा था, वो अनलोड करने की, वहाँ पर जो गुड्स आए थे, मर्चेंटाइज आया था, उनको नीचे उतारने का काम सिंदबद कर रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हीज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस। और जब अनलोड कर रहा था, वो शिप अनलोड करने का काम कर रहा था, तब उसको क्या दिखाई दिया कि कुछ जो बॉक्सेस थे, वो बॉक्सेस पे सिंदबद का नाम लिखा है। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। उसके बाद क्या हो गया, वो सरप्राइज्ड हो गया कि ऐसे मेरा नाम क्यों लिखा है, और वो शिप के कैप्टन को देखने के लिए चला गया। आफ्टर at first the captain could not believe that he was the same Sindbad that they had seen drawing in the sea। पहले तो कैप्टन जो था उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये वही सिंदबद है जो समुंदर में उनको दिखा था, कि जो शिप तक नहीं पहुंच पाया था और समुंदर में ही जो छोड़ के आए थे, ये वही सिंदबद है। But when Sindbad spoke him to face, he recognized him। लेकिन सिंदबद जब उनको सामने से सिंदबद की और उनकी बात हुई कैप्टन की, तो कैप्टन को रियलाइज़ हुआ, रिकग्नाइज्ड हुआ कि हाँ ये वही सिंदबद है। ही वॉज ओवर जॉय टू सी सिंदबद अलाइव। और वो जो कैप्टन है वो बहुत ही हैप्पी हो गया सिंदबद को जिंदा देख के। ही गेव हिम बैक टू हिज मर्चेंटाइज। उसने उसके जो मर्चेंटाइज है, चीज़ें है सिंदबद की, वो सिंदबद को वापस कर दी वो कैप्टन ने। फ्रॉम द गुड्स दैट ही डज गॉट बैक, सिंदबद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम टू द किंग ऑफ द आइसलैंड सेइंग। जब उसको उसका गुड्स, उसके थिंग्स मिल गए, तब उसमें जो कुछ भी वैल्यूएबल था वो किंग को वो देने के लिए गया। और क्या बोला, प्लीज़ एक्सेप्टेड दिस योर मैजेस्टी, हमारे सरकार ये आप ले लो, ये आपके लिए है। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जनरस टू मी। वो जो आइसलैंड के किंग को क्या कहा सिंदबद ने कि आप बहुत ही दयालु और दानशूर है। द किंग वॉज प्लेस्ड, किंग को बहुत ही अच्छा लगा। द किंग ही टू गेव सिंदबद मैनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स व्हेन सिंदबद लेफ्ट द आइसलैंड विद द मर्चेंट शिप। किंग ने भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें सिंदबद को दी जब सिंदबद आइसलैंड छोड़ के वो शिप पे चला गया, वही शिप में जहाँ से जो शिप सिंदबद को छोड़ के आइसलैंड से चली गई थी, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होने के वजह से वो शिप बाद में उसे मिली। और वो शिप से जब जाने वाला था, तब वो किंग ने उस भी वैल्यूएबल गिफ्ट सिंदबद को दिए। If you want to know what happened to Sindbad afterward, you have to read the rest of the story of his fantastic voyage। अगर आपको और भी कुछ सिंदबद के बारे में जानना है तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, द अरेबियन नाइट्स जो मैंने पहले बताई थी। तो ऐसी थी सिंदबद की स्टोरी। वो कभी भी अपने समुद्री सफ़र में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने ब्रेवली, हॉनेस्टली और जेनरसली मुकाबला किया किसी भी डिफ़िकल्टी का, ओके, और वो सक्सेस हो गया। तो आज हमने ये जो स्टोरी है वो पूरी तरह से देख ली है। आफ्टर वी सी द एक्सरसाइज ऑन दिस स्टोरी, but this is for the next lecture we will see the exercise of this story and hard word. Okay, bye.